یہ بات ہے 31 جولائی 2024 کی رات کے قریب 2 بجے ایران کے کیپٹل تہران میں پریزیڈنٹ پیلیس کے کمپاؤنڈ کے اندر ایک زوردار دھماکہ سنا جاتا ہے۔ نہ ہی یہ کوئی معمولی دن تھا اور نہ ہی جہاں دھماکہ ہوا کوئی عام لوکیشن۔ دن معمولی اس وجہ سے نہیں تھا کیونکہ یہ ایران کے نئے پریزیڈنٹ مسعود پیزشکیان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کا دوسرا دن تھا۔ اس ہرے بھرے کمپاؤنڈ میں جہاں مختلف رائل پیلیس دیکھے جا سکتے ہیں، اس کے کنارے پر یہ 5 اسٹوری بلڈنگ ہے جہاں ایران کے اسٹیٹ گیسٹ آ کر ٹھہرتے ہیں، اور اسی بلڈنگ کے 3rd فلور پہ یہ دھماکہ ہوا تھا۔ اس دن اس گیسٹ ہاؤس میں کوئی عام شخص نہیں بلکہ فلسطین کے فارمر پرائم منسٹر اور حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیے موجود تھے۔ یہ ایک ہائی پروفائل مرڈر تھا۔ حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیے کو اسیسینیٹ کرنے کے پیچھے اسرائیل کی ایجنسی موساد کا ہاتھ بتایا گیا، لیکن ہمیشہ کی طرح اسرائیل اور موساد نے اس پر کوئی بیان نہیں دیا۔ حماس کے لیڈر کو ایرانین پریزیڈنٹ کے کمپاؤنڈ کے اندر تب ختم کیا گیا جب وہ ایرانی ریولیوشنری گارڈ کی پروٹیکشن میں تھے، اور وہ بھی ایک اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اگر واقعی یہ اسرائیل نے کیا تھا تو یہاں پہ چند سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ اسرائیل سے قریب 2000 کلومیٹر دور یہ آپریشن کیسے انجام دیا گیا؟ اسماعیل ہنیے کو اتنے الگ انداز میں کیوں ختم کیا گیا؟ ایران میں تو صرف یہ مہمان بن کر آئے تھے، ویسے زیادہ تر یہ ایجپٹ، قطر یا ٹرکی میں رہتے تھے، تو پھر ان کو ایران میں ہی کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ اسرائیلی ایجنسی موساد کے چند ٹارگیٹڈ آپریشنز پہ نظر دوڑائی جائے تو اس میں ایک چیز بہت کامن ہے: خوف۔ جی ہاں، چاہے ایڈولف ایچمین کی سزائے موت ہو، سیریا میں نیوکلیئر ری ایکٹرز پہ بمباری، ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹس کا قتل، یا پھر لیبنان میں حزب اللہ کی 3000 پیجر ڈیوائسز کا ایک ساتھ پھٹ جانا، ان سب حملوں کا مقصد اسرائیل کے دشمنوں کو پیغام دینا ہے کہ وہ چاہے کہیں بھی ہوں، موساد سے بچ نہیں سکتے۔ اسماعیل ہنیے جو اسرائیل کی ہٹ لسٹ میں شمار ہوتے تھے، قریب 10 سالوں سے وہ قطر میں رہ رہے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حماس کے اور لیڈرز بھی قطر میں آزاد رہتے ہیں۔ مزے کی بات یہ کہ قطر میں اسرائیل کی الائے امریکن آرمی بھی موجود ہے۔ وہاں حماس کے لوگ چھپ کر نہیں رہتے، یہاں تک کہ حماس کا ہیڈ کوارٹر بھی قطر میں ہی موجود ہے۔ اسماعیل ہنیے نے بھی قطر میں کئی سال گزارے، لیکن ان پر ایک بھی حملہ نہیں ہوا۔ لیکن آخر کیوں؟ اگر ان کو دشمن ملک ایران کے بجائے قطر میں ہی ٹارگٹ کیا جاتا تو یہ زیادہ آسان ہوتا، پر ایسا صرف ہم سوچ رہے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کی وجہ جاننے کے لیے ہمیں 14 سال پیچھے جانا ہوگا، جب اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد سے ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا تھا۔ ایک ایسا بلنڈر جس نے موساد کی ریپوٹیشن کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا۔ 2010 میں حماس کے لاجسٹکس آفیسر محمود عبد الرؤف المبوح کو ختم کرنے کے لیے موساد نے ایک آپریشن پلان کیا تھا۔ موساد کی نظر میں محمود کی ڈیوٹی ایران سے ویپنز خرید کر غازہ اسٹرپ تک پہنچانے کی تھی، اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ محمود نے پاسٹ میں 2 اسرائیلی سولجرز کو مارا ہے۔ خیر، اس آپریشن کا نام پلازما اسکرین رکھا گیا اور یہ دبئی میں انجام دیا جانا تھا۔ موساد کے 20 ایجنٹس نے اس آپریشن میں حصہ لیا، جن کو بھیس بدل کر دبئی پہنچنا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت 24 کنٹریز ایسی تھیں جو اسرائیلی پاسپورٹس کو نہیں مانتی تھیں، جن میں دبئی بھی شامل تھا۔ لہٰذا ان 20 ایجنٹس کو کسی فورن پاسپورٹ پہ دبئی پہنچنا تھا، لیکن یہ فورن پاسپورٹس کہاں سے ارینج کیے گئے، اس کے لیے اسرائیل میں ایک سسٹم بنا ہوا تھا۔ اسرائیل میں ہی جن لوگوں کی ڈوئل نیشنلٹی تھی، یعنی ایک پاسپورٹ اسرائیل تو دوسرا برٹش، امریکن یا آسٹریلیا کا، تو ان لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا جاتا اور ان کے پاس ایک آفیسر جاتا تھا۔ ان سے پوچھا جاتا کہ کیا ان کو حال ہی میں اپنے سیکنڈ پاسپورٹ پہ ٹریول کرنا ہے یا نہیں، اور اگر کوئی کہتا نہیں تو ان کو کہا جاتا کہ کیا وہ ملک کی سلامتی یعنی اسرائیل کی سلامتی کے لیے اپنی پاسپورٹ ڈیٹیلز استعمال کرنے کے لیے دے سکتے ہیں، اور جواب میں اکثر لوگ منع نہیں کرتے تھے۔ آپریشن پلازما اسکرین کے لیے موساد کو 20 فورن پاسپورٹ ڈیٹیلز چاہیے تھی، یعنی ان پاسپورٹس پہ نام کسی اور کا ہوگا اور تصویر موساد ایجنٹ کی۔
इन फेक पासपोर्ट्स पे एक से ज्यादा बार ट्रैवल करना भी काफी रिस्की हो सकता है, लिहाजा उनको पहली बार में ही दुबई जाकर हमास के लॉजिस्टिक्स ऑफिसर को खत्म करना बहुत जरूरी था, पर ऐसा हो नहीं सका। पहले विजिट में उन्होंने महमूद को दुबई में ही फॉलो किया और उसकी नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी, लेकिन इससे पहले कि एजेंट्स कुछ करते, महमूद दुबई से चला गया। दूसरे विजिट में एजेंट्स को सेम पासपोर्ट्स पे ही दुबई आना पड़ा और वो महमूद का पीछा करते करते उसकी कॉफी में जहर फेंकने में कामयाब हो गए, पर महमूद की मौत ना हो सकी। उसकी तबीयत खराब जरूर हुई और वो अपने घर सीरिया चला गया। 2-3 महीने के बाद महमूद दोबारा दुबई आया और साथ ही मोसाद एजेंट्स भी वापस दुबई पहुंच गए, उन्हीं फेक पासपोर्ट्स पे जिन पर एक से ज्यादा बार ट्रैवल करना उनके लिए काफी रिस्की था। अब की बार उन्होंने महमूद के होटल में ही रहने का इरादा किया। टेनिस प्लेयर गेटअप में कुछ एजेंट्स ने महमूद का होटल लिफ्ट में पीछा किया और उनमें से एक एजेंट ने नोट किया कि वो कौन से रूम में जा रहा है। ये सारा ऑपरेशन सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्ड हो रहा था। वो महमूद के बराबर वाला रूम बुक करने में कामयाब हो गए। इनमें से 4 एजेंट्स ने सही मौका तलाश करके महमूद के रूम का दरवाजा खोला और अंदर घात लगा कर बैठ गए। जब महमूद शॉपिंग करके वापस आया तो उसको एक अल्ट्रासोनिक डिवाइस से मार दिया गया। इस डिवाइस की खास बात यह है कि ये बगैर सुई या फिजिकल निशान छोड़े इंसान का दिल बंद कर सकती है। ये सारा ऑपरेशन प्लाज्मा स्क्रीन किसी हॉलीवुड मूवी जैसा लगता है। सिर्फ एक फर्क था कि मूवीज में एक हैकर साथी बाहर वैन में बैठ के सीसीटीवी के रिकॉर्ड्स डिलीट करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं था। एजेंट्स की सारी मूवमेंट्स सीसीटीवी में रिकॉर्डेड थी। एजेंट्स ने महमूद को बेड पे लिटाया कि जैसे ये नेचुरल मौत मरा है और सारे फौरन दुबई से ही भाग गए। जैसा वो चाहते थे ठीक वैसा ही हुआ। दुबई पुलिस ने कहा कि महमूद हार्ट अटैक की वजह से मरा है, लेकिन हमास ने क्लेम किया कि महमूद की मौत नेचुरल नहीं बल्कि इनका मर्डर हुआ है। दुबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस देखी और इमिग्रेशन के रिकॉर्ड्स चेक किए। ये वो फेक पासपोर्ट्स ही थे जो मोसाद के एजेंट्स को ले डूबे। मालूम पड़ा कि 20 एजेंट्स ने ठीक एक साथ दुबई में महमूद के पीछे एंट्री की। सिर्फ एक नहीं बल्कि तीनों विजिट्स में उनकी एंट्री महमूद की एंट्री से मैच कर रही थी। और तो और महमूद की मौत के 2 घंटे के अंदर अंदर ये 20 के 20 एजेंट्स दुबई से भाग गए। दुबई पुलिस ने उनके अरेस्ट वारंट्स इशू कर दिए। ये उन सब के लिए काफी हैरानी की बात थी जिनके ये असल में पासपोर्ट्स थे। जिनके पासपोर्ट्स इस्तेमाल किए गए थे वो ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिशर्स, आयरिश और जर्मन नेशनल थे। जब उनको मालूम पड़ा कि उनके नाम पे दुबई में मर्डर हुआ है तो वो भी काफी नाराज हुए। मामले को इंटरनेशनल कवरेज मिल रही थी और इस मर्डर को लेकर इन कंट्रीज की काफी बदनामी होने लगी। ये वही कंट्रीज थी जो इजराइल की अलाय मानी जाती हैं और उनको काफी बुरा लगा कि उनके दोस्त मुल्क ने ही उनको दुनिया में बदनाम किया है। मोसाद का ऑपरेशन प्लाज्मा स्क्रीन इजराइल के लिए काफी बदनामी और नेगेटिव इंप्रेशन की वजह बना। इजराइल जो असल में अपने अलाइज के दम पर ही मिडिल ईस्ट में मौजूद है, उसने अपने अलाइज का ही भरोसा तोड़ा था। तब से लेकर इजराइल ने अपने दोस्त मुल्कों और अलाइड पार्टनर्स को नाराज करने का कोई मौका नहीं दिया। यही वजह है कि हमास का हेडक्वार्टर भी कतर में मौजूद है, क्योंकि कतर यूएस का अलाय होने के साथ साथ हमास का हामी और सपोर्टर भी है। 2011 में यूएस प्रेसिडेंट बाराक ओबामा ने कतर को पर्सनली रिक्वेस्ट की कि वो अपनी जमीन पर हमास की लीडरशिप को जगह फराहम करे। उस वक्त यूएस हमास के साथ निगोसिएशंस करना चाहता था और ये काम कतर में करना ज्यादा आसान था बनिस्बत ईरान के। यही वजह है कि इजराइल के लिए हमास लीडर्स को कतर में टारगेट करना नामुमकिन है। लेकिन जब हमास के लीडर्स कतर में नहीं होते तो वो टर्की, इजिप्ट या ईरान में होते हैं। इजिप्ट और टर्की भी यूएस अलाइज हैं और यहाँ पर हमास लीडर्स को टारगेट करना भी बदनामी का बायस बन सकता है। लेकिन ईरान यूएस का अलाइड पार्टनर नहीं है। यही वजह है कि इस्माइल हनीये को ईरान में टारगेट करना मोसाद के लिए ज्यादा आसान था। इससे कोई अलाइड पार्टनर नाराज भी नहीं होगा।
मोसाद को मालूम था कि इस्माइल हैनिये अक्सर तेहरान जाते रहते हैं। उनको ये भी इंफॉर्मेशन थी कि जब भी वो ईरान जाते हैं तो स्टेट गेस्ट के तौर पे प्रेसिडेंशियल पैलेस के कंपाउंड में मौजूद गेस्ट हाउस में रहते हैं। पर उनको ये मालूम नहीं था कि अगली बार हैनिये ईरान कब जाएंगे। इसी दौरान एक वाकया हुआ जो इस्माइल हैनिये को ईरान बुलाने के लिए काफ़ी था। आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले ईरान में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। ये क्रैश 19 मई 2024 को हुआ, जिसमें ईरानियन प्रेसिडेंट की मौत हो गई। मोसाद को अच्छी तरह मालूम था कि अब नए प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन सेरेमनी पे हमास लीडर इस्माइल हैनिये को जरूर इनवाइट किया जाएगा। मोसाद के एजेंट्स ने प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के 2 गार्ड्स को पैसे और यूरोप में असाइलम का लालच देकर इस बात पर राजी किया कि वो इस्माइल हैनिये जिस रूम में रहते हैं उसके बेड के नीचे एक बॉम्ब प्लांट करें। ये टाइमर बॉम्ब नहीं था, बल्कि रिमोटली कंट्रोल्ड तरीके से सही टाइम पे फटने वाला बॉम्ब था। प्लान के मुताबिक इस्माइल हैनिये को नए ईरानियन प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी पे इनवाइट किया गया। ये सेरेमनी 28 जुलाई 2024 को होनी थी। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि बॉम्ब सेरेमनी से 8 हफ्ते पहले प्लांट किया गया था। 28 जुलाई को नए प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियान ने ओथ उठाया। इस्माइल हैनिये ने इनॉग्रेशन अटेंड की, ईरानियन सुप्रीम लीडर से मुलाकात की और फिर 30 जुलाई को गेस्ट हाउस में चले गए। मोसाद के लिए उन पर नजर रखना भी काफी आसान था, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल पैलेस ईरान के पुराने शाह ने अपने शौक में इंटरनेशनल स्की रिजॉर्ट के करीब बनवाया था। यहाँ से 7 किलोमीटर लंबी चेयर लिफ्ट स्की रिजॉर्ट तक लेके जाती है और चेयर लिफ्ट से ये बिल्डिंग साफ साफ दिखती है जहाँ इस्माइल हैनिये को रात गुजारनी थी। एजेंट्स ने खुद देखा या अंदरूनी गार्ड्स की मदद हासिल की, लेकिन जैसे ही उनको खबर मिली कि इस्माइल हैनिये अपने रूम में जा चुके हैं तो वो रूम की लाइट्स बंद होने का वेट करते रहे। इस वक्त रात के 1:40 हो रहे थे। जैसे ही रूम की लाइट्स बंद हुई तो उन्होंने बटन प्रेस करके बेड के नीचे लगा बॉम्ब फाड़ दिया। इजराइल के लिए इस किस्म के हमले करने का मकसद अपने मुखालिफिन के दिल में खौफ और दहशत डालना है, ताकि उनको लगे कि चाहे वो कितने भी सिक्योर्ड माहौल में हों, उनको कहीं भी किसी भी वक्त टारगेट किया जा सकता है। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।